Welcome back, students. Already we have covered some of the items, that is 8 items in basic accounting terms part 1. Now we have to start with part 2. This chapter, basic accounting terms, is a very important chapter because you have to understand the terminology of accounting in this chapter only, so that easily you will understand what is happening in the further chapters. This 11th class is a very important class. Basically, this is a class of, or this is the year of fundamentals. You have to understand about different subjects, different new subjects, that is accountancy, business studies and economics. In this class, if you are able to cope up or to understand the subject thoroughly, then you will find no difficulty in your next class, that is your 12th class. So that's why each and every lecture is very important and you have to understand it very properly. Rest, whatever your doubts are there, that doubts you have to mention in the comment section, and whenever I am free, definitely I'll answer your doubts. So let's start with the part 2 of basic accounting terms. This is the 9th item, that is expense. Now you see, a monetary measure. Monetary, you all are understanding. That means if we are in a position to measure in terms of money. A monetary measure of input. What do you mean by input? Input means something is coming into our business. For example, suppose purchase is there. When I am purchasing the goods is coming into my business. Why goods are coming into my business? Because of purchase. So purchase here we are considering it as input. A monetary measure of input or resources. Basically, there are different sort of resources in our business, right? For example, if I want to avail different sort of services, if I want to this particular task to be done by some specialized persons, then I have to take the service of that persons, and for that thing we have to pay something as a consideration. Consideration means something in return to that person, right? Suppose I want to make my books of accounts in a very proper manner, so I hired some accountant. So if I want to avail that service of accountant, then I have to pay something as a consideration, right? So in return, I am paying salary to that person. Got the point? Got the point? So a monetary measure of input or resources consumed. Consumed means I have consumed that thing. Again, the same examples. Suppose I purchased a goods. I purchased a goods. That means goods is with me only, right? That means consumed. I am having the goods. I hired some person and I have given some task to that person. That person have to complete that task, correct? Suppose that person has completed that task. That means what? My work is done. Now I have to pay something. Clear? So in very simple language, what do you mean by expense? Expense means whatever the input or resources, if you are consumed, if you have availed the benefit, if you have availed that thing, then what you are paying, that is expense. Got the point? अब अकाउंटिंग में जनरली हम बात करते हैं पर्टिकुलर ईयर की. सपोज मैं बात करता हूं इस ईयर की, सपोज 2020, मैं इस ईयर की बात कर रहा हूं, राइट? तो अगर मैंने कोई सर्विस अवेल किया
इस ईयर में और उसका मैंने पेमेंट कर दिया सेम ईयर में, तो दैट इज टर्म्ड एज एक्सपेंस। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं, अगर किसी चीज का आपने बेनिफिट लिया और उसका आपने पेमेंट सेम ईयर कर दिया, तो वो खर्चा कहलाएगा, दैट इज एक्सपेंस। क्लियर? अब देखो जरा, अगर मैं आपसे बोलता हूं, एग्जाम्पल देता हूं एक्सपेंस के, सपोज परचेज, परचेज इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंस। मैंने कहा सैलरी, मैंने कहा रेंट, एडवर्टाइजिंग। आप सब जानते हो, इफ वी नीड टू एनहांस आवर बिजनेस वी नीड सम सॉर्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट्स। गॉट द पॉइंट? अब जो उस एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हम पे करेंगे, दैट इज अ एक्सपेंस, राइट? तो हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लिए एक्सपेंस के। अब थोड़ा और डीप में जाते हैं। देखो जरा, यहां पे दो टर्म्स लिखे हुए हैं, एक है प्रीपेड एक्सपेंस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब इसको समझो पहले। प्रीपेड क्या होता है? प्रीपेड मींस पेड इन एडवांस। दोबारा सुनो, प्रीपेड मींस पेड इन एडवांस। मतलब अगर कोई एडवांस पेमेंट आपने किया, दैट इज प्रीपेड। एग्जाम्पल सुनना, एग्जाम्पल देता हूं, समझ में आएगा आपको। सपोज आपको अपने ऑफिस के लिए एक बिल्डिंग या एक रूम लेना है या एक कंपाउंड लेना है, कुछ भी, ठीक है? अब जो लैंडलॉर्ड है वो आपसे कहता है कि यू हैव टू पे 12 मंथ रेंट टू लैंडलॉर्ड एज एन एडवांस। अब समझना बात को, अभी तक हम उस बिल्डिंग में भी नहीं गए, उस पर्टिकुलर ब्लॉक में भी नहीं गए, उस कंपाउंड में भी नहीं गए, लेकिन हमने रेंट एडवांस में दे दिया एज अ सिक्योरिटी। क्लियर? तो आप ये क्या बोलोगे कि दैट इज प्रीपेड, पेड इन एडवांस। अब आप मुझसे पूछोगे कि क्या सर ये एक्सपेंस है? अब एक्सपेंस की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी आपको? अगर आपने कुछ भी सर्विसेज अवेल किया और पेमेंट किया तो वो एक्सपेंस है। अब ये बताओ, रेंट पे तुमने बिल्डिंग लिया, लेकिन तुमने तो वो रेंट एडवांस में दे दिया। क्लियर? एक भी दिन तुम वहां पर नहीं गए, लेकिन तुमने एडवांस में दे दिया। अब बताओ, क्या ये एक्सपेंस है? नहीं। क्लियर है? नाम इसका प्रीपेड एक्सपेंस है, लेकिन ये एक्सपेंस नहीं है। दिस इज आवर एसेट। नाउ दिस थिंग यू कीप इन माइंड। गॉट द पॉइंट? प्रीपेड इज ऑलवेज आवर एसेट्स। अब आप बोलोगे सर ये एसेट कैसे हुआ? एसेट इसलिए हुआ, एसेट की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी? कोई भी ऐसा आइटम जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगा, वो एसेट है। अब बताओ, क्या प्रीपेड से आपको बेनिफिट नहीं होगा? एक और एग्जांपल देता हूं आपको, और अच्छे समझ में आ जाएगा। हम सब जितनी मोबाइल सिम्स यूज करते हैं, शायद वो सभी सिम्स हमारी प्रीपेड सिम्स होती हैं। गॉट द पॉइंट? अब आप कैसे उसको रिचार्ज करते हो? पहले आप जो मोबाइल कंपनी है, आप उसे पेमेंट करते हैं, उसके बाद बेनिफिट अवेल करते हैं। क्या हुआ ये? प्रीपेड, पेड इन एडवांस। मान लो मैंने आज रिचार्ज कराया, एक रिचार्ज मैंने 500 का कराया, सपोज आज मैंने रिचार्ज करा दिया, मैंने पेमेंट कर दिया, लेकिन बेनिफिट रिचार्ज के बाद ही मैं यूज कर पाऊंगा उसे। तो क्या मैं इसे एक्सपेंस बोलूं? नहीं। एक्सपेंस क्या होता है? जिसका बेनिफिट तुमने पहले ले लिया हो और उसके बाद पेमेंट किया हो। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग क्या होता है? ड्यू बट नॉट पेड। दोबारा सुनो, आउटस्टैंडिंग क्या होता है? ड्यू बट नॉट पेड। अब एग्जांपल लेके चलना। अभी अभी एग्जांपल दिया था कि तुमने एक अकाउंटेंट को हायर किया, उसको तुमने टास्क दिया, उससे तुमने अपना वर्क कंप्लीट कराया, तुमने वर्क कंप्लीट करा लिया, तुमने सर्विसेज अवेल कर ली। अब ये बताओ, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तब तो तुम पेमेंट कर दोगे, देन दिस विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस। बट इफ यू डोंट हैव मनी, देन व्हाट यू विल डू? You will say to that person that at present we are having some crisis of funds, so we will pay you later. Got the point? As soon as you said this, that we will pay later,
अब बताओ लाइबिलिटी क्या था? लाइबिलिटी था एन ऑब्लिगेशन टू पे, अ बाइंडिंग ड्यूटी टू पे। अगर किसी एक्टिविटी के थ्रू या किसी ट्रांजैक्शन के थ्रू आप लाइबल हो जाते हो पे करने के लिए, तो दैट इज लाइबिलिटी। अब आउटस्टैंडिंग देखो, आउटस्टैंडिंग मींस ड्यू बट नॉट पेड। आपने फैसिलिटीज तो अवेल कर ली, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है उसको पेमेंट करने के लिए, तो आपने क्या बोला कि हम आपको बाद में पेमेंट करेंगे। तो क्या ये एक्सपेंस हुआ? नहीं। एक्सपेंस क्या है? फिर सुनो, एक्सपेंस क्या है कि हमने बेनिफिट अवेल किया एंड पेमेंट किया, दैट इज एक्सपेंस। हमने बेनिफिट अवेल किया, पेमेंट नहीं किया, तो दैट इज नॉट एन एक्सपेंस, दैट इज अ लाइबिलिटी। होप सभी बच्चों को ये पॉइंट्स पूरे पूरे क्लियर हो गए होंगे। अब इसमें शायद किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, दैट इज इनकम। इनकम पे आओ जरा, देखो उसकी डेफिनेशन क्या है, कंटेंट क्या है। प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। इनकम, profit earned during an accounting period. Just now I told you that normally we are doing our accounting for 12 months. That is a year. Means year by year we are doing our accounting. Clear? Now, profit earned during an accounting period. That means whatever the revenues we have, that means incomes, whatever the revenues from different sources we are getting funds. Got the point? And to different aspects we are spending money also, that is expense. Now revenue minus expenses is equals to income. Suppose we generated a revenue, we generated an income of 1 crore and we have spent an amount of rupees 80 lakhs. Revenue generation is 1 crore, expenses are of 80 lakhs. 1 crore minus 80 lakhs is equals to 20 lakhs. 20 lakhs is my income for that accounting period. Hope this point is clear. Now come to the next point, profit. Clear? Now see, income earned by the business from its operating activities. अब देखना, income earned by the business from its operating activities. अब यहां पर यह नया टर्म मिला आपको, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब बिल्कुल सिंपल वे में आपको मैं समझा देता हूं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती है। ठीक है? जैसे मान लो किसी का फर्नीचर का बिजनेस है, ठीक है, तो रॉ मटेरियल में वो डिफरेंट वैरायटीज के वुड्स परचेज करेंगे। ठीक है? कारपेंटर्स होंगे, ठीक है, मैनेजमेंट करने के लिए लोग होंगे, ठीक, अकाउंटिंग वगैरह प्रिपेयर होगी, ठीक है, गोडाउन्स होंगे, उसके बाद फर्नीचर रेडी होगा, ठीक है, उसको रखेंगे, उसकी मार्केटिंग होगी, उसको सेल आउट करेंगे। बात समझना। When we are saying that ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो हम बात करते हैं डायरेक्ट कॉस्ट की। गुड्स को खरीदना, रॉ मटेरियल को खरीदना, उसको बनाना, बना करके बेच देना, ऑल दिस इज डायरेक्ट एक्टिविटीज। क्लियर? तो ये चीजें करने के लिए जब हम ये चीजें करते हैं तो हम बोलते हैं दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर? अब आप बोलोगे सर नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं? अब देखना, नॉन ऑपरेटिंग क्या होगा, अगर हमने कोई एडवर्टीजमेंट कराया। अब बताओ, क्या तुमको वुड की कॉस्ट में, कारपेंटर की कॉस्ट में, अदर मटेरियल की कॉस्ट में कहीं तुमको एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस दिख रहा है क्या? नहीं। तो हम कहते हैं दैट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है? चलो, इनकम अर्न बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बिल्कुल सिंपल सा वे में मैंने आपको समझा दिया। नॉर्मली खरीदा, बनाया, बेचा, कितना खर्चा हुआ। अब इसमें आप सुनना ध्यान से, जितना तुमने बनाया, बना करके जितना तुम्हारा कॉस्ट है और जितना तुम्हारा सेलिंग प्राइस है। क्लियर? अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है,
कॉस्ट कम है तो क्या हो जाएगा तुम्हें? प्रॉफिट। ठीक है, मान लो फर्नीचर वुड खरीदा, बनाने का पूरा कॉस्ट अगर उसमें इंक्लूड कर दिया, मान लो 10,000 का तुमको एक चेयर है, ठीक है, या 6 पीसेस ऑफ चेयर्स है, ठीक है, कितने रुपए में उसका ये हुआ मैन्युफैक्चरिंग? सपोज 10,000 में, उसको तुमने सेल कर दिया 12,000 में, दैट मीन्स 2,000 इज योर प्रॉफिट। और अगर इसी का वैसा वर्सा ले लो, अगर 10,000 में मैन्युफैक्चर हो रहा है और तुमने उसको 9,000 में सेल आउट किया, दैट मीन्स अब आगे बोलने की जरूरत नहीं है, 1,000 का क्या होगा? नेट लॉस। अब आ जाओ, इसमें देखो दो चीजें हैं, एक है ग्रॉस प्रॉफिट और दूसरा है नेट प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट जो मैं अभी आपको बता रहा था कि जो डायरेक्ट एक्टिविटीज के थ्रू जो हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, जैसे अभी तुमने किया 10,000 का कॉस्ट है, 12,000 में तुमने सेल आउट किया, तो 2,000 इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब लेकिन सिर्फ डायरेक्ट ही एक्सपेंस नहीं होते ना, बहुत सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, बहुत सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के थ्रू भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, इनकम्स हो सकती हैं। तो सबको जब हम क्लब कर देते हैं, इन शॉर्ट बोलूं कि सभी एक्टिविटीज को जब तुम क्लब कर लोगे, बिजनेस की कोई भी इनकम को छोड़ेंगे नहीं, बिजनेस के कोई भी एक्सपेंस को छोड़ेंगे नहीं, सबको रख देंगे, देन यू विल गेट अ नेट प्रॉफिट। एक बार ध्यान से देख लो इसको।